Okay, hello everyone, a very good morning. How are you guys? So guys, we were talking about the central problems of an economy and we discussed two central problems, right? So today we are going to talk about third central problem of an economy. Okay. What were the first two central problems of an economy? How to produce. What's your name, dear? I've seen you first time. Barkha. Okay, you have not attended previous two classes? No, you were not present yesterday online. You saw the recorded. And what about you? अच्छा आप तो आए थे, आप कल नहीं आए थे. Okay. And आप डियर अच्छा आप पेपर कर रहे होगे. ठीक है. Okay. What to produce and how to produce. Third problem is for whom to produce. Now see guys, this problem is also relevant. How? Understand, in an economy, there are several sort of people. People having different types of interest, people belonging to different sectors of the society, people living in different areas of an economy. Yes or no? Their choices and preferences are determined by so many conditions. Their financial conditions, that is their earning capacity, right? Then their financial condition, that is their earning capacity. Then the environment where they are living, are they being exposed to several things or not, right? After that, what all are their choices? Do they like certain things or not? So there are so many factors which determine the choices and preferences of an individual in an economy, right? And there are so many individuals in an economy. Okay, so what happens due to that? Let me give you an example. There are certain people who use two-wheeler for their conveyance, right? They travel by two-wheeler, bike, cycle, bicycle, whatever. There are certain others who travel by Wagoner or Swift or things like that, right? They travel in hatchback. There are several others which use sedan for traveling purposes. Can be Honda City, it can be Skoda, whatever, right? Then there are others which use SUVs. Okay, some travels with from Mercedes, some travel from Lamborghini. Yes or no? So many varieties depending on the earning capacity and financial ability of an individual. Yes or no? And all are the means of transportation, and few others which cannot afford, or maybe due to any X, Y, or Z reason, they use public transport, buses and all. Yeah. Now, if an economy decides that it is only going to produce Mercedes or Lamborghini, it is not going to produce any other automobile, then what will happen? People who are traveling by Wagoner or by Honda City, they will not be able to afford Mercedes, right or wrong? So they will not be able to travel by car. वो ऑटोमोबाइल यूज ही नहीं कर पाएंगे. बोले हाँ कि ना. What about people who were using bike as their mode of transport? वो भी नहीं परचेज कर पाएंगे, right or wrong? That means only one particular section of the society would be served and others would be deprived from the modes of transport. बोले हाँ कि ना? Yes or no? If it is decided in the economy that we are only going to produce bicycle, now what about super rich people, elite class or upper middle class? They were using cars. So now they are also forced and compelled to travel by bicycle. Their needs will not be satisfied. There are different customer bases in an economy. And based on these customer bases, economy has to decide that what it has to produce and for whom it is producing.
The product has to adhere to the needs of the consumer. जो कंज्यूमर है उसके हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए, बताइए हाँ कि ना, राइट? बोलिए बोलिए. So if in an economy only tea is produced, कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं, जूसेस है ही नहीं, बताइए हर किसी को तो टी पसंद नहीं. आपको पसंद है टी? ओके, आपको पसंद है. अब कोई जूस पीता है, वो बेचारा क्या करेगा, राइट? या so this always has to be kept in mind that economy is producing for whom, which customer base will be satisfied by the product that is being produced in the economy. It is serving which class, yes or no? अब inferior goods होते हैं आपके, apparels का एग्जांपल ले लेते हैं, cheap clothes. अब अगर आप सिर्फ cheap clothes प्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी में, so obviously you are serving the purpose of those who cannot afford good clothes. उनका तो पर्पस सॉल्व हो रहा है, थर्ड क्लास. ओके, व्हाट अबाउट मिडिल क्लास, व्हाट अबाउट अपर क्लास? उनको तो आप डिसअपॉइंट कर रहे हैं. यू आर नॉट सेटिस्फाइंग देयर नीड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरी प्रोडक्ट हैज अ कस्टमर बेस एंड इकोनॉमी always has to be mindful that for which customer base they are producing. Understood? So that was the third central problem of an economy. Did you people understand? Ananya, Dinesh, Priyansh, Sanskriti, Sarita. ठीक है? So Barkha and everyone, please write down this thing. Yeah. Okay, everyone. Now, guys, any economy can be classified into several categories depending on the different notions. Okay. So first segregation that we are going to talk of is about the control over the factors of production. So based on the control over the factors of production, economy can be classified into three categories. Okay. So classification of an economy. This classification is based on factors of production. The first type that we are going to discuss, it is market economy or capitalist economy. Don't worry, I'll give you time to write. Don't worry. आप भी भाई साहब जी. So, market economy or capitalist economy. What is market economy or capitalist economy? See, guys, the economics that has been developed, it was actually developed for this type of economy only. This model of economy totally adheres to economics. Economics इसी टाइप की इकोनॉमी के लिए बनी थी. जो इकोनॉमिक्स बनी थी उसको जिन जिन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया वो सारी कंट्रीज मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही कहलाएंगी. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. तो होता क्या है,
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज, डियर आर यू पेइंग अटेंशन, the most important feature is that households are the owner of factors of production. So now the question arises, what are household? Household means anyone who is living in the house. So me, I'm household, you are household, all of us, we all are household. In economics, household को एक entity की तरह consider किया जाता है, ठीक है? People living in the houses are called household, ठीक है? So the first feature of capitalist economy or market economy is कि household जो हैं वो owner है FOPs की, factors of production के. What are factors of production? Land दो बार land. Okay, land. आप बताइए. Entrepreneur. 4 factors of production are there, ठीक है? So if households are the owner of factors of production, so what's the meaning? Land will be possessed by household. और आप अपने यहाँ देख लीजिए, आपका जो घर है उसके कोई ओनर होगा, मदर फादर whosoever, ठीक है, उनकी लैंड है. ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की लैंड है ये, राइट? उन्होंने परचेज कर रखी है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. लेबर, भाई आप अपने घर को बिलोंग करते हो ना पहले, हाँ, कि गवर्नमेंट को बिलोंग करते हो पहले? टू whom you belong? घर को बिलोंग करते हैं, है ना? अगर आप गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, जैसा कि कुछ इकोनॉमी में होता है, तो गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती तो आपको उठा करके बॉर्डर पे भेज देती, जाओ. हाँ, ऐसा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, राइट? लेकिन आप अपने घर को बिलोंग करते हो. लेबर बिलोंग्स टू दी हाउस होल्ड. कैपिटल कौन ओन करता है? मशीन्स आप खरीदते हो, अगर आप फर्म चलाओगे यू विल परचेज दी मशीन्स, राइट और रॉन्ग? आप ही के एसेट्स खरीदते हो, गोल्ड सिल्वर इक्विटी बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आप ओन करते हो. बोलिए. और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस भी रन करता है वो भी कहां से आ रहा है? ही इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द हाउसहोल्ड. सो हाउसहोल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी का फर्स्ट फीचर है. बोलिए, समझ में आई बात? राइट. सेकंड फीचर इज दैट market scenarios are determined by the forces of market. मतलब कौन सी चीज सेल करनी है, and to sell it you have to produce it. So which thing you need to produce? कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये कोई गवर्नमेंट नहीं बताती है. आपके गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं स्टैब्लिश कर देती दैट यू हैव टू प्रोड्यूस दिस, यू डू नॉट हैव टू प्रोड्यूस दैट. इट इज ऑटोमेटिकली और ऑटोनॉमसली रन इन दी मार्केट. ये अपने आप चलता है, स्वचालित है. हाउ? आई गिव यू द एग्जांपल इन द लास्ट टर्न ऑफ 2G मोबाइल, कि भाई गवर्नमेंट ने कोई डिक्री नहीं निकाली थी, गवर्नमेंट डिड नॉट पास एनी लॉ दैट यू डू नॉट हैव टू मैन्युफैक्चर 2G मोबाइल्स. Automatically the production of 2G mobiles ceased. Why? Because people stopped demanding it. लोग जिस चीज को नहीं खरीदेंगे, फर्म उसको क्यों प्रोड्यूस करेगी? क्योंकि व्हाट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बोलिए हाँ कि ना? तो अगर किसी चीज में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट कैसे होगा? अगर कोई चीज सेल आउट होगी तभी तो प्रॉफिट होगा. तो अगर किसी चीज में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा क्योंकि वो सेल आउट नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा. बोलिए. इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली हो गया. राइट और रॉन्ग? ठीक है, किसी ने नहीं कहा, ये हो गया. समझ रहे हैं बात? किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ये भी इसी डिमांड और सप्लाई से गवर्न होता है. मान लीजिए, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट टर्म, दैट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. सारी की सारी रिसोर्सेस स्कार्स है, ठीक है. अब इफ देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर आ जाइए, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी भी स्कार्सिटी है, लिमिटेशन है. अनलिमिटेड या इनफाइनाइट प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा.
भले इस बॉटल की बात कर लीजिए, ठीक है, इसका लिमिटेड प्रोडक्शन हुआ है। अब बरखा इस बॉटल को यूज करती हैं और ये बड़ी खुश हो गई इस बॉटल से, ये पानी वानी अपना इनटेक बढ़िया हो गया इनका, इन्होंने सबको सजेस्ट किया, 4-5 लोग, आप लोग मान गए, आपने भी यूज किया, आपने औरों को सजेस्ट किया, मल्टीप्लाई होता चला गया, इस बॉटल की डिमांड एकदम स्काई रॉकेट हो गई। तो जो कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही थी उसको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ा, हाँ कि ना, बोलो। लेकिन प्रोडक्शन इतनी जल्दी तो इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि उसको भी रॉ मटेरियल्स चाहिए ना, बॉटल बनाने के लिए लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, ये सब एकदम से तो आ नहीं जाएगा। तो तब तक के लिए इस बॉटल की स्कार्सिटी हो जाएगी, और अगर स्कार्सिटी हो जाएगी पर आप सबको चाहिए ये बॉटल, तो क्या होगा, इसका प्राइस राइज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट टर्न में बताया था, दैट व्हाट इज प्राइस, इट इज जस्ट द इंडिकेशन कि उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, क्योंकि प्रोडक्ट की तो स्कार्सिटी है, हर किसी को अवेलेबल नहीं करवा सकते, इसलिए उस पर प्राइस टैग होता है। Just like an entry ticket, money is just like an entry ticket, yes or no? तो दाम इसका राइज हो गया, बोलिए, तो प्राइस भी इफेक्ट हो रहा है मार्केट सिनेरियो से, राइट और रॉन्ग, ठीक है, प्राइस भी इफेक्ट हो रहा है। तो सारे जो भी डिसीजंस होते हैं मार्केट में कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, ऑल दीज थिंग्स आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, right? There is no other external factor which governs or decides that how much you have to produce or sell or what you have to purchase or so, right? बोलिए, समझ रहे हैं बात को? सो इसी को एडम स्मिथ ने अपनी बुक में कहा था that there is a invisible hand, this is a concept of invisible hand that governs and runs the market. कोई पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल कोई इंस्टीट्यूशन मार्केट को रन नहीं करता, बल्कि मार्केट तो रन हो रहा है, आपने अभी देखा, डिमांड और सप्लाई की वजह से रन हो रहा है, और डिमांड और सप्लाई की तो फोर्सेज हैं, दिखती हैं क्या आपको, डिमांड दिखती है क्या, इट्स नॉट टेंजिबल, दिखता नहीं है, इनविजिबल है। तो इनविजिबल फोर्सेज हैं जो मार्केट को रन करती हैं, इसी को उन्होंने इनविजिबल हैंड बोला था। बात समझ में आई? पहले 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर आगे बात करें। Okay, here you have to describe it as well, you know. Let me know when you are done, right? Online, are you people getting it? Everyone online? आपको समझ में आया? चले आगे? Yeah, so first aspect was, are you done? First aspect was this, that household are the owners of factors of production. Second was
market is governed by the invisible forces of demand and supply. There is no external influence. So the third point is continuation of this, that if market is governed by the forces of demand and supply and there is no external influence, that means there will not be any control of the government. Government is not going to interfere in the scenarios of the market. गवर्नमेंट मार्केट की ऑपरेशंस में मार्केट को कैसे रन करना है, किस चीज का क्या प्राइस होना चाहिए, किस चीज का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये कोई भी चीज में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है. देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट. हेलो, मार्केट में ये नहीं, लॉ ऑर्डर डिफेंस ये सब तो गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, दैट इज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट. बट इन द मार्केट सिनेरियो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. पूछना है क्या? तो गाइस, व्हेन आई एम सेइंग दैट देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए. आप लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, राइट? अब एलपीजी सिलेंडर फॉर एग्जांपल उसका प्राइस है 1500 रुपीज और 1600 रुपीज, वॉट एवर यू वांट टू टेक. एंड लेट्स से यू आर गेटिंग द सिलेंडर फॉर 900 रुपीज. तो एलपीजी सिलेंडर कोई एक फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है और आप परचेज कर रहे हो. अब उस फर्म को कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 1400 समथिंग और उसका प्राइस 1500 वो फिक्स कर रही है, तो वो आपको 900 में क्यों दे रही है? वो 600 रुपीज का लॉस क्यों उठा रही है? क्या कोई फर्म लॉस उठाने के लिए बिजनेस करती है? फर्म तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बिजनेस करती है. तो फिर वो आपको लेकर के लॉस क्यों उठा रही है? दान धर्म क्यों कर रही है आपके साथ? Government subsidize it. So what is the meaning of it, that government is going to subsidize it? It means that the government will pay for the services to the citizens because the state is welfare state. Just a minute. Government will pay to the citizens. तो आपको रुपए दे देती है गवर्नमेंट कि ये लो 900 रुपए तुम अपनी जेब से लगाओ, 600 मैं दे रही हूँ. So government will pay for the services to the citizens. My dear, what understand my question? I am saying the price is 1500. You are paying 900. I am talking about the difference of 600. You answer me this. From where this 600 will come and it will go into whose pocket? That's what the question is. You are beating around the bush. It will go to the company. And who is going to pay for it? Sir, government. Yeah. See, in economics, please do not beat around the bush in economics. It's not like any other subject of your humanity कि जहां पर आप इधर उधर की बात करें, इतिहास बताएं, ये बताएं, ये नेगेटिव मार्क्स में रिजल्ट कर देगा. The impression it will cast on the examiner is that you do not know the concept. Okay, as I've told you earlier, economics is the amalgamation of science and humanity. So that's the scientific approach, that you have to talk to the point. Okay, got my point, Priyansh? Okay, so ये जो सब्सिडी वाला सिनेरियो था, this subsidy was given for the help of the individuals, you people, because LPG is a necessary good and firm is not going to give you any sort of discount. Firm is out there to do the business. So what government says is that, okay, you give 900, I am going to pay remaining 600 on your behalf. आपके behalf में government pay कर देती है, right? So firm is getting 1500 only, but it is costing you as 900. It is costing you 900. आपकी जेब से 900 जा रहे हैं. तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है एक्चुअली. By giving subsidy, government is helping you. बोलो yes or no? Right. Farmers get urea for 400. The price of the bag is 900 originally. Who is paying the remaining 500? Government is paying it to the firm. Firm is not a charitable institute, right? बोलिए, ठीक है. So all these are the helps extended by government to the individuals or citizens of the country, and these are called subsidies.
In market economy, there will not be any subsidy. Why? Because if government is paying off on your behalf, then government is interfering in the market scenario. And what market economy says? That government should not interfere. There should not be any intervention from the government. Government has got no business to be in business. Adam Smith, right? तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो यहां पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी. There is one more tool that is often used by the government, and I want Priyansh to answer. The tool is called control price. So Priyansh, do you know what is control price, or anyone else? Control on the prices. गवर्नमेंट में फिक्स द प्राइस ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज जिसके ऊपर मैक्सिमम एमआरपी. एग्जांपल फॉर एग्जांपल एमआरपी सर के किसी भी प्रोडक्ट का एमआरपी तय कर देना. No, dear, that is not control. That is not the control over the prices. Your idea was correct, but you concluded it in a wrong way. Impression that you have is correct, but the explanation is wrong. Yeah, control means a bar. Government applies a bar on the prices of necessary goods, and not always. If the need be, if government is observing that prices of certain necessary commodities may inflate, may increase, किसी मान लीजिए शुगर पे गवर्नमेंट 2-3 बार कंट्रोल लगा चुकी है, 60s में लगाया था, 80s में लगाया था, तो शुगर एक नेसेसरी गुड है इंडियन हाउस होल्ड में, राइट? तो उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर सकते हैं. तो अगर इस नेसेसरी गुड के प्राइसेस हाइक कर जाएंगे, so it will cause problems to the common citizens. It will put extra burden on their pockets. बोलिए हाँ कि ना? Because of that, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अपर लिमिट फिक्स कर दी, लेट्स से 20 रुपीज पर केजी, कि प्राइस 20 रुपीज पर केजी के ऊपर नहीं जाएंगे, फिक्स कर दिया मार्केट में इंटरवीन करके. इंटरवेंशन है ये. तो आप कैसे फिक्स करते हो? वो तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स. यस और नो? बट गवर्नमेंट ने प्राइसेस पे कंट्रोल लगा दिया. कभी कभी लगाती है, या गवर्नमेंट को लगा व्हीट ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत हाइक कर सकते हैं, इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उसके प्राइस पे कंट्रोल लगा दिया. समझ रहे हैं बात को? So that's what we mean by control. It is again a tool to help the citizens of the country. But in market economy, this is not allowed. Getting my point? Yeah. So the concept of market economy is very brute and core concept of economics, classical economics, basically given by Adam Smith in his book Wealth of Nations, where it is said that households are the owners of factors of production. Government has got to do nothing with the market. It is not going to intervene in the market. Invisible hand is going to run the market. That is, the forces of demand and supply are going to run the market. Okay. So these are the few aspects or characteristics of market economy. Did you understand my point? Right. So market will function on its own. No intervention is required from anyone's end. ठीक है, बोले समझ में आया? अनया, दिनेश, प्रियांश, संस्कृति, सरिता, all of you. ठीक है. There are certain cons, that means disadvantages associated with market economy. So first disadvantage is that it creates huge gap in the society. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिच एंड पुअर का गैप है वो ब्रिज नहीं होता है.
रिच एंड पुअर के बीच का गैप ब्रिज नहीं होता है, कम नहीं होता है, रैदर वो इंक्रीज होता चला जाता है. कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू हेल्प द पुअर. पुअर के पास कहां से आ जाएगी कोई चीज? मार्केट इज गोइंग टू रन ऑन द मार्केट सिनेरियो. If you do not have the money to purchase the food, go starve and die. No Masiha would come to rescue you. Getting my point? और जिनके पास resources हैं, the rich, they will keep on using it, they will keep on getting benefits from the market, and they will keep on becoming more and more rich. Whereas poor will become more and more deprived. So the gap between rich and poor is going to widen. It is not going to narrow. समझ रहे हैं बात को? इनके बीच का गैप कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता चला जाता है. दैट मीन्स इट इंक्रीजेस इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी बढ़ जाती है सोसाइटी में. गेटिंग माय पॉइंट? लिख लीजिएगा. What happened dear? परेशान से लग रहे हो? No? Yeah, you should smile. Smile looks good on you. हमेशा खुश रहिए. क्या हुआ? हो गया? Okay. Second is it creates crony capitalism. Crony capitalism. What is the meaning of crony capitalism? Anyone? Yes, Priyansh. Crony capitalism. When political authority is used to benefit certain capitalist class or person. How? How will political party benefit any certain capitalist? So for by melding the regulations in such a way, example, if there is a contract for building road, it will be given to certain companies or individuals, so the profit will go to that only. So can Congress benefit any capitalist? Indian National Congress? It will benefit the people who will invest in their election. As of now, can Indian National Congress provide benefits to any particular firm or capitalist? I don't know. It can provide in the states it is in power. My dear, in the states where INC is in power, so INC has formed government. It is a government of that state, or is it a party? Government belongs to a particular party, or government is same for everyone? Government is neutral. It is the political authority that benefits. So in crony capitalism, again the idea was clear, was correct, but again the explanation was wrong. Political parties do not provide benefit. Government provides benefit. Government has got the control and authority. For example, you gave the example of contract. Government can grant contract to any capitalist, not any political party. And when political party will come into the power, it will again be a government. It will no longer remain a political party. Government is a different entity, and political party is a different entity. That's a different issue. That political parties only form the government. But once they form the government, they are identified as government, not as the political party. You say that the government
as of now is of NDA. Government is of NDA. You do not say that NDA, you refer government. जो गवर्नमेंट है वो एनडीए ने बनाई, लेकिन अब वो गवर्नमेंट है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ बीजेपी. Yes or no? Finance Minister of India, whatever. Got my point? Yes, sir. It is a constitutional entity, so it is equal for everyone. अब वो पर्सनल एजेंडा है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, that's their conduct. But constitution के हिसाब से government is a neutral body. Government is for everyone. बोलो, right? Okay. ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं वो न्यूट्रल होते हैं. राहुल गांधी इज व्हाट? ही हैज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पद और नॉट? हाँ, क्या है? वेरी गुड. ही इज एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन. ही माइट बी लीडर ऑफ कांग्रेस एज वेल, बट इन पार्लियामेंट ही इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग एंटायर ऑपोजिशन, not on any single party, but entire opposition. It's a constitutional designation. It is neutral. Got my point? LOP is equivalent to a cabinet minister, right? So do remember that. इसमें technical error था. So when government gets inclined towards certain favorite capitalist, industrialist firms, and governments start making policies so as to extend the benefits to these certain capitalists, then such form of capitalism is called crony capitalism. तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको बेनिफिट पहुंचाना चाहती है. आपस की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, लॉबिंग हो सकती है, व्हाटएवर. पर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी वो बना रही है जिससे कुछ सेलेक्टेड फ्यू का बेनिफिट हो. ये है क्रोनी कैपिटलिज्म. हाँ जी. So, but this crony capitalism itself is the breach of the principles of market economy, because government will regulate the market unnecessarily. No, understand. Crony capitalism is the breach of market economy. Your point is 50% correct, 50% incorrect. Whenever, understand one thing, whenever any theory, any system is formulated, right? So that system is formulated on the basis of existing problems. आप कोई भी सोल्यूशन देंगे किसी चीज का, तो जो प्रॉब्लम उस टाइम पे परसिस्ट कर रही होगी उसका सोल्यूशन देंगे ना. कि आप आने वाली प्रॉब्लम को सोच करके आज जो प्रॉब्लम है उसको नजरअंदाज करके सोल्यूशन देंगे, तब तो आपका सोल्यूशन ही इनइफेक्टिव हो जाएगा. प्रियांश, राइट? ये जो सिस्टम है, ध्यान दीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो सिस्टम है, आपको क्या लग रहा है कि एडम स्मिथ ने पहले सपना देखा, फिर किताब में लिखा, फिर अलग अलग देशों की गवर्नमेंट ने पढ़ा और फिर अपने यहां लगाया? ये ऐसा नहीं होता है. ये इकोनॉमिक्स है. यहां पर क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि आइडिया जनरेट हुआ, बल्कि वहां की उस टाइम पे इकोनॉमीज इसी तरह से फंक्शन कर रही थी. उन फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए एडम स्मिथ ने कुछ और आइडियाज दिए जिनको इंप्लीमेंट किया गया. उस टाइम पे मर्केंटलिज्म चलता था, और जो कैपिटलिज्म आया है या इकोनॉमिक्स आई है वो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट आई है. और मर्केंटलिज्म का सीधा सा प्रिंसिपल था कि दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो, उनका गोल्ड और सिल्वर अपने यहां लेकर के आओ. तो ये उस प्रॉब्लम का सलूशन था. यहां पर ये नहीं डिफाइन था कि हम इस सिस्टम से भी आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. वो तो जब आप कोई सिस्टम अप्लाई करते हो तब आपको आगे चल के पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है या इससे ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है. तो अब जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है तो आप उसको कह रहे हो कि अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है तब तो फिर जो है ये कैपिटलिज्म के ही अगेंस्ट हो गया. कैपिटलिज्म इस प्रॉब्लम को ध्यान में रख के थोड़ी ना लाया गया था.
वो तो उस टाइम की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के लाया गया था। अब कैपिटलिज्म के आने से कुछ और चीजें हुई जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बोलिए, बात समझ में आई प्रियांश? बोलिए बोलिए। यस सर। और आप जो बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। पॉलिसी लेकिन कौन बनाएगा? गवर्नमेंट की जो मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं, हाउस होल्ड की नहीं, गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि नहीं करेगी? बोलिए प्रियांश। नेचुरल रिसोर्सेज यस सर। किसकी हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के हाउस होल्ड की हैं। माउंटेन आपका है, गवर्नमेंट का है, तो उसमें मार्केट कैसे इंटरफेयर कर देगा? अब माउंटेन पे माइनिंग वगैरह करने की परमिशन तो गवर्नमेंट ही देगी ना। ये तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है कैपिटलिस्ट के साथ भी। तो अब गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसका दोस्त है। ये हुआ क्रोनी कैपिटलिज्म? बताइए, अंडर द डोमेन्स ऑफ यस सर। कैपिटलिज्म इटसेल्फ। तो खैर, दीज वर द कॉन्स ऑफ इट। प्लीज आप इसके कॉन्स लिख लीजिए। क्या हुआ डियर? समझ में आया? चले आगे। राइट। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी is called command economy or socialist economy. ओके, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसी का जो एक्सट्रीम वर्जन है दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी। लेट अस अंडरस्टैंड इट। द फीचर्स ऑफ कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, नंबर वन, गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिख लीजिए, गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? लैंड किसकी है? लेबर किसका है? आप किसको बिलोंग करते हो? डू नॉट बिलोंग टू योर पेरेंट्स, यू बिलोंग टू दी गवर्नमेंट। कैपिटल किसका है? आप मशीन्स खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, बट अल्टीमेट ओनर ऑफ दैट थिंग इज गवर्नमेंट। ओके। और आप बिजनेसमैन कितने भी बड़े फर्म बन जाओ, आप तब भी किसके हो? गेटिंग माय पॉइंट? तो जब गवर्नमेंट चाहेगी, जो चाहेगी आपके साथ कर सकती है, बिकॉज यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। यू आर दी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। आप कुछ भी इस इकोनॉमी में ओन नहीं कर सकते। आपका घर आपका नहीं है, आपको वो स्पेस अलॉट किया गया है बस रहने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
राइट। आपके एसेट्स आपके नहीं है, गवर्नमेंट के। आप बस टाइम बीइंग उनको यूज कर रहे हो। कब तक यूज कर रहे हो? जब तक आपके यूज करने से कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हो रहा है जो कि कंट्री के लिए अच्छा है, तब तक आप यूज कर सकते हो। आपकी कोई लैंड नहीं है, आपने लैंड ली है गवर्नमेंट से, उस पर आप फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ आउटपुट दे रहे हो गवर्नमेंट को, इसलिए आपको मिली है लैंड। तो समझ रहे हो आप बात? तो ये जो सेंस ऑफ पोजेशन है ये मिनिमाइज हो जाता है, या कह दीजिए एक्सट्रीम एंड में जाएंगे कॉम्युनिज्म में तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। आप कुछ पोजेस ही नहीं कर रहे हो, आप बस खुद को पोजेस करते हो, यू योरसेल्फ। ठीक है, वो भी आप खुद के नहीं हो, गवर्नमेंट के हो, कंट्री के हो। राइट, सबसे पहला एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, when government is owing the factors of production, so what will be produced in the economy? Who is going to decide? Government. How much the production will be? Who is going to decide? Government. What will be the price? Who is going to decide? Government. Yes or no? इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में वर्क करना है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क करना है, किस सेक्टर पे ज्यादा काम करना है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, इंफ्रा पे, लॉजिस्टिक्स पे, कैपिटल गुड्स पे, कंज्यूमर गुड्स पे, किस पे काम करना है? हु इज गोइंग टू डिसाइड? गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड। तो सारे डिसीजंस मार्केट से लेकर के ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी के कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। माइन्यूटेस्ट माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल तक वो डिसाइड्स? गवर्नमेंट। तो इसके लिए प्लानिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल प्लान कि हमें किस साल में क्या प्रोड्यूस करना है, या हमें किस साल में किस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, या कितने साल किस सेक्टर को देना है। इंडिया में 5 ईयर प्लान थे, ये कमांड इकोनॉमी से ही इंस्पायर्ड थे, वे सेंट्रल गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग कि फॉर 5 इयर्स व्हाट वुड बी द एजेंडा ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में वर्क करेगी। नॉट द मार्केट फोर्स बट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका। ठीक है, पहले 2 एस्पेक्ट लिखिए आप लोग अच्छे से। जितिन, आप समझ पा रहे हैं? Take 2-3 minutes and write it properly.
चलें आगे. So see guys, the extreme form of this economy will lead to communism. That's the ultimate goal of it. Acha. This branch of economy, it became popular after Karl Marx. ये सोशलिज्म कम्युनिज्म का आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया था. वंडरफुल मैन ही वाज. He was also an economist, but he disagreed with many of the economical theories given by classical. जो क्लासिकल्स ने, क्लासिकल क्या है देखिए, इकोनॉमिक्स में वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. ठीक है, क्लासिकल कोई भी चीज मैं आपसे कहूँ क्लासिकल म्यूजिक, तो मतलब क्या हुआ क्लासिकल म्यूजिक का? हाँ, ओल्ड टाइप नहीं, ओल्ड ही, ओल्ड. ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक स्कूल ऑफ थॉट है इकोनॉमिक्स का, और जिन लोगों ने ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था इकोनॉमिक्स का, उनको हम क्लासिकल्स बोलते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही क्लासिकल से होती है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके. एडम स्मिथ, और बताओ, से, जेबी सेज लॉ, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, रिकार्डो, राइट, रोजेंटाइन, बहुत सारे हैं क्लासिकल्स. ये सब इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी. इनके बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वैसे हैं तो और भी, लेकिन चलिए मैं आपको मेजर बता देता हूँ. मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट हैं उनका ये स्कूल ऑफ थॉट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो क्लासिकल्स के स्कूल ऑफ थॉट से मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी, उनका जो किताब थी, जो पहली किताब दास कैपिटल मींस द कैपिटल, वो कोई भी नहीं समझ सकता है जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती, क्योंकि उसमें कोर इकोनॉमिक प्रोसेसेस की ही बात हुई है. यूटिलिटी ऑफ द गुड, आप यूटिल्स जानते हैं ना, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इन सारी चीजों की, कि किसी भी चीज की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, तो कोर इकोनॉमिक्स लिखा है उन्होंने. तो हिज बुक इज क्रिटिक ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिकल्स. और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था क्लासिकल्स का, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी. समझ रहे हैं बात को? तो मार्क्स ने उस चीज को क्रिटिसाइज किया और एक और सिस्टम सोसाइटी का सजेस्ट किया जो कि सोशलिज्म कहलाया. और मार्क्स ने अपनी थ्योरी में कहा था कि कोई भी इकोनॉमी होती है, कोई भी सोसाइटी होती है, वो गवर्न होती है, उसके सेंटर पे इकोनॉमिक सिस्टम होता है, और बाकी जितनी भी चीजें आप उसके इर्द गिर्द देखते हैं, वो सब उस इकोनॉमिक सिस्टम का ही एक्सटेंशन है. यानी रूट इज इकोनॉमिक्स, रेस्ट एवरीथिंग आर दी ब्रांचेस, ट्रंक एंड एक्सेट्रा. हर चीज के कोर में इकोनॉमिक्स है. तो जो आप सोसाइटी देखते हैं, कोई भी आप सोसाइटी देखते हैं, वो सोसाइटी रिजल्ट है उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस का. तो अगर आप किसी ऐसी इकोनॉमी में जाते हैं जो पुअर है, डेवलपिंग है, यस और नो, तो वहां की जो सोसाइटी होगी उसमें आपको मोस्टली करप्ट लोग मिलेंगे. पुलिस कैसी होगी उस सोसाइटी की? पुलिस जो है ब्रूटल होएगी, एग्रेसिव होएगी, क्योंकि लोग करप्ट हैं, लोग क्रिमिनल मेंटालिटी के हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वैसी पुलिस चाहिए. पॉलिटिशियंस कैसे होंगे? हाईली करप्ट होंगे, पैसा मारना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस इकोनॉमी के रूट में ही पैसों की कमी है. ना भाई, पॉलिटिशियंस भी तो सोसाइटी से आते हैं. अब जो सोसाइटी ही डिप्राइव्ड है, तो हमेशा सबके सब कॉन्शियस में तो यही है ना, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट. मान लीजिए आप ऐसी जगह से आए हो जहां पे खाने को नहीं मिलता है, हफ्ते में 2 बार खाना मिलता है, ठीक है, और आप 10-12 साल 15 साल वहीं पे रहो, और फिर आप नॉर्मल जगह आ जाओ. आपके लिए अब लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलिए. आप होर्डिंग करने लगोगे. होर्डिंग जानते हो? स्टोर करने लगोगे फूड. 5-5 किलो चीजें, 10-10 किलो चीजें खरीद के रखोगे, ग्रेन्स वगैरह अपने पास, कि कहीं फिर से वो ऐसा ना हो जाए सिनेरियो. बोलिए हाँ कि ना?
डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादातर देखना लोग सेविंग्स ज्यादा करते हैं, होल्ड कर रहे हैं मनी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसों की कमी देख रखी है, तो मेंटेलिटी है कि कहीं फिर वैसा ना हो जाए, इसलिए होर्डिंग कर रहे हैं। बोलो, आप अक्सर बीमार पड़ जाओ अगर, तो आप मेडिसिन उस बीमारी के अपने पास स्टोर करके रखोगे कि नहीं रखोगे, कि कहीं फिर बीमार ना पड़ जाऊं तो खा लूंगा या खा लूंगी, हाँ कि ना? तो मेंटेलिटी जो होती है सोसाइटी की, वो उसका इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन करता है, ये मार्क्स ने कहा था। और वैसे ही वहां के लोग होते हैं, वहां का सिस्टम होता है, वहां के पॉलिटिशियंस होते हैं, वहां के सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में जाओगे करप्शन कम मिलेगा, क्योंकि पैसा हमेशा देखा है, तो पैसा इतना इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पैसे के लिए लोग अपने आप को डीवैल्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसे कभी कमी नहीं देखी, तो पैसे का इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अभी सोचने में भी हम लोग, आप लोगों को अजीब, हम लोग अजीब लगता है, क्योंकि हम गरीब इकोनॉमी के, फिर शायद सब ये होता है। क्योंकि जो आज पैसे वाले भी हैं, वो भी 4 जनरेशन पहले गरीब थे, अभी ताजा ताजा अमीर बने। कुछ ही है 1-8% और कम, जो 5-10 जनरेशन से रईस हैं, जमींदार थे, उनके फोर फादर्स या कहीं के नवाब थे कुछ, तो उन्होंने कभी कमी नहीं देखी, तो उनके डीएनए में नहीं है। बाकी इंडिपेंडेंस के टाइम तो 75% से ज्यादा तो पुअर थे, इम्पोवरिश्ड थे। तो अभी तो बने ये 75 ईयर्स में, कितनी जनरेशन हो गई? 2-2.5 जनरेशन बस, 33 ईयर्स की एक जनरेशन। तो सबके मन में वही मेंटेलिटी है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो मार्क्स ने कहा कि सारी चीजों की जो करप्शन की जो जड़ है, द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इज मनी। ये पैसा है चीजों का रूट कॉज, सारी बुराइयों का। बोले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिच पुअर को एक्सप्लॉइट कर देता है, हाँ कि ना? उसको थोड़े से पैसे देता है और उससे बहुत सारी काम करवाता है, मेहनत करवाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। और ये मनी ये कहां से कमा पा रहा है? क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज है, ही हैज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। बोलिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है, इसीलिए यूज कर रहा है। फ्यूडलिज्म में क्या होता था? लैंड होती थी, लैंड के ओनर्स होते थे फ्यूडलिस्ट लॉर्ड्स, लैंड ओनर्स, और बाकी लोग वहां पे वर्कर्स होते थे, सामंतवाद। ठीक है? सो उन्होंने कहा ये इशू है, तो अगर किसी के पास ओनरशिप ही ना हो रिसोर्सेस की, तो कोई भी रिच और पुअर नहीं होगा। ओनरशिप गवर्नमेंट को दे दो, स्टेट को दे दो ओनरशिप, तो आप किसी को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाओगे पैसे के दम पे, राइट और रॉन्ग? तो जो इसका एक्सट्रीम वर्जन है सोशलिज्म का, कम्युनिज्म, जहां पे कम्यून, कम्यून का मतलब क्या होता है? जहां पे सब इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल, किसी का भी स्टेटस ज्यादा नहीं, किसी का भी स्टेटस कम नहीं, सब बराबर। आज तक रियलाइज नहीं हो पाया ये, क्योंकि अभी आप समझेंगे तो नहीं हो पाया। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म द थिंग वुड बी कि आप बड़ी मेहनत कर रही हैं, आपका नाम क्या है? बरखा। बरखा बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात एक कर देती हैं। शी बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, शी इज वेरी डिलिजेंट एंड शी बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर। And let's say when she becomes an IAS officer, at that point of time, Indian economy changed to command economy or communist economy. Indian economy communist बन गई तब, ठीक? तो क्या होगा? कुछ नहीं, जितनी बरखा की सैलरी होगी उतनी स्वीपर की सैलरी होगी, बराबर। दोनों एक तरह के घर में रहेंगे, 2 कमरे वाले घर पे, उनका अलग होगा, उनका अलग होगा, लेकिन एक ही तरह का घर होएगा, एक ही तरह के व्हीकल से चलेंगे दोनों। समझ रहे हैं बात को? दोनों का ही कुछ नहीं होगा, सब गवर्नमेंट का है। तो बरखा ने इतनी मेहनत करी, स्वीपर ने मजे किए, और दोनों एक ही। अब स्वीपर बरखा को देख के ऐसे, क्या मिल गया? क्या कर रहे थे तुम? क्यों? हमें देखो, तुम्हारे बराबर कमाते हैं, बरखा मनी मन कहेगी यस और नो? तो अगर आपके हार्ड वर्क को एक्नॉलेज ना किया जाए, तो क्या आप हार्ड वर्क करोगे? बताइए, नहीं करेंगे?
अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं जज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जजिंग यू। नो, मतलब बताइए, अगर आपकी और किसी स्वीपर की या और कोई जो मेन होल वगैरह साफ करता है, दोनों की सैलरी बराबर हो, एक ही जैसा लिविंग स्टैंडर्ड हो, सब सेम, तो आप काम करोगे ज्यादा, पढ़ाई वढ़ाई करोगे? अरे बोलो ना, सच बोलने में क्या दिक्कत है? 99.9% नहीं करेंगे। वो रेयर होंगे 0.01% जो वर्कोहॉलिक हैं, जिनको काम करने में मजा आता है, हमारे टाइप के कुछ लोग जो काम करेंगे। बाकी सब तो इंसेंटिव के लिए काम करते हैं ना, रिवॉर्ड्स के लिए। जब आप इंसेंटिव ही हटा लोगे, ये पैसा, पावर, स्टेटस, ये सब इंसेंटिव ही तो है जो आपको और आपके पेरेंट्स को प्रमोट करते हैं। अरे आप चलो काम करना भी चाहो, पेरेंट्स कहेंगे क्यों लगाएं पैसा, जाओ तुम भी बेटा कंचे वंचे खेलो, फायदा क्या है? ये सर नो। तो इंसेंटिवाइजेशन अगर हटा लोगे तो लोग काम करना बंद कर देंगे, और यही प्रॉब्लम आई कमांड इकोनॉमीज के साथ। इसलिए आज आप देखेंगे जो भी कमांड इकोनॉमी है, वैसे कुछ ही बची हैं, सब मिक्स्ड हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो ज्यादा इंक्लाइंड है कमांड की तरफ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी बेकार है, उनका जीडीपी बड़ा बेकार है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि काम करने का मोटिव ही नहीं है। यस और नो? समझ रहे हैं? तो एक ये इसकी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम कमांड इकोनॉमी के साथ ये है कि कमांड इकोनॉमी में आपने एक सेंस से तो इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहा कि लोग रिसोर्सेस के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। पर जो ऑब्जर्वेशन किया गया, रशिया, यूएसएसआर इसका बेस्ट एग्जांपल है, 60s और 70s आते आते रशिया में कोई भी रिच नहीं था, सब बराबर थे, सब गरीब थे, एवरीवन वाज इक्वल फाइनेंशियली। और ये थ्योरी प्रोपाउंड जो करी थी कार्ल मार्क्स ने, उसका बेसिस यही था कि पुअर का एक्सप्लॉयटेशन होता है रिच के द्वारा। अब रिच और पुअर तो हट गया, पर पावरफुल, लेस पावरफुल और वीक आ गया। ये नए सेगमेंट्स आ गए सोसाइटी में, और सोसाइटी इससे सेग्रीगेट हो गई। यानी एक पार्टी है, मैंने क्या कहा था, सेंटर में इकोनॉमिक्स है और बाकी सारे एस्पेक्ट्स उसकी ब्रांचेस हैं। तो सोशलिज्म इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन सोशलिज्म पॉलिटिकल भी है। सोशलिस्ट इकोनॉमीज में क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम। कमांड इकोनॉमी में वन पार्टी सिस्टम। रशिया में क्या है? चाइना में क्या है? वन पार्टी रेजीम है। बोलिए, राइट? ये सोशलिज्म का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। कौन सा? पॉलिटिकल। सोशलिज्म का इकोनॉमिक स्कोर है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और एक सब्जेक्ट भी है इसी पर जो कि सोसाइटी के एस्पेक्ट की बात करती है, सोशियोलॉजी। ये कहां से निकला है? सब सोशलिज्म से निकला है, मार्क्स से निकला है। पर सेंटर में क्या है? इकोनॉमिक्स, और बाकी सब उसके ब्रांचेस हैं। समझ में आ गई बात? तो वन पार्टी सिस्टम में जो भी उस पार्टी का मेंबर बन गया वो ज्यादा पावरफुल है किसी कॉमन सिटीजन से। अब बरखा आईएएस ऑफिसर बनी और आपका नाम उदय उस पार्टी के मेंबर बन गए। अब बरखा सैल्यूट कर रही हो, ठीक है। उदय से ज्यादा पावरफुल कौन होगा? जो उस पार्टी में कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है। उससे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? जो मिनिस्टर होगा। उससे ज्यादा जो वहां का डिक्टेटर होगा या हेड होगा। ब्रेक हो गया? तो अब ऊपर वाला अपने नीचे वाले का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, जिसके पास ज्यादा पावर है। अब मनी को रिप्लेस कर लिया पावर ने, एक्सप्लॉइटेशन पावर के हिसाब से हो रहा है। और ये ऑब्जर्व किया गया, अब तो एक्सप्लॉइटेशन और गंदा था। उसमें तो चलो पैसे वैसे परेशान करते हैं तो मार डालते हैं, किल। इसमें तो और गंदा एक्सप्लॉइटेशन आप देख ही रहे हो दुनिया में हुआ। तो सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि इक्वालिटी तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, इट इज अ मिथ। ये कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? समझ में आया ये सिस्टम? चलिए आज के लिए इतना ही।
अब मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को होगी। ओके, थैंक यू। अरे मैंने उस बच्ची को भेजा भी था।